हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में मैं आपको एग्रीकल्चर वीज़ा के ऊपर एक नया अपडेट देने वाला हूं। तो आज के समय में इजराइल में कौन कौन से देश के लिए एग्रीकल्चर का वीज़ा खुला है, इंडिया और नेपाल जैसे देश के लिए एग्रीकल्चर का वीज़ा खुला है कि नहीं, और अभी जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो एजेंसी है एग्रीकल्चर वीज़ा देने के नाम पे काफ़ी सारे पैसे वैसा ले रहा है और ऑफ़र लेटर भी दे रहा है, किसी किसी को तो वीज़ा भी दे रहा है। तो उसमें क्या सच्चाई है, मैं सब कुछ सत्य तथ्य आज खोलने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा जानकारी मिलेगा। बहुत सारे जो व्यूअर्स है वो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, आधा देखते हैं और उसके बाद काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। तो हुआ ऐसा कि आज मैंने एक जो एग्रीकल्चर वर्कर लाने वाला एक एजेंसी है उसके जो सीईओ है उसको मैंने कांटेक्ट किया और काफ़ी सारे जो एग्रीकल्चर वर्क वीज़ा के बारे में मैंने उनसे पूछा, और इंडिया और नेपाल जैसे देश के लिए एग्रीकल्चर वीज़ा खुला है कि नहीं इसके बारे में मैंने उनसे पूछा। तो उनसे जो मैंने कॉल किया है तो कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग पहले सुन लीजिएगा। कॉल रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो आप पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं उसके बारे में आपको टोटल बताने वाला हूँ। Israeli government allow only Thai people and Sri Lanka people. And for Indian workers, sir, for in agriculture? No Indian, no Nepalese, no Vietnamese, no nothing. Only Thailand and Sri Lanka. Okay, so many agents they are just making false promise to the worker to the citizen. I know, and I spoke to Hanan Godar, the ambassador, and I spoke to everyone, and they all know, and they use my name and they use the other names of people, and it's not true. False. Okay, that means it is clear that from India and from Nepal, the Israeli government is not recruiting any agriculture worker. No. Listen, from India, yes, workers can come to Israel for construction, okay, not yeah, for agriculture, for okay, construction. okay, And for me, my agency, we only work in agriculture. okay, I don't have construction, and I don't have caregivers, and I don't have anything. I have only agriculture. okay. So for me, for my agency, for our segment, we can only bring workers to from Thailand or Sri Lanka. For now. It's from your agency, but do you have any idea, sir, from other agency in agriculture sector, especially in No. All the agriculture sector can bring only Thailand and Sri Lanka. Okay. Other sectors can bring from India, from other countries. But in the agriculture sector, only Thailand and Sri Lanka. Okay, now I am clear, because many of my friends they are applying for agriculture visa from Nepal and India, and they are waiting for the only Thailand and Sri Lanka. Okay, from your statement I came to understand that sector, not my agency is different than other agencies. No, all agencies in agriculture are the same. Okay. What is the reason behind to ban this worker from India? They want in agriculture to bring the workers in bilateral agreement, country to country. And Nepal government is not signing agreement with Israel. Okay. And from India? Thailand signed, Sri Lanka signed, India signed only in construction. Nepal didn't sign at all. So this is it. Thank you, sir. Thank you for your answer, sir. Thank you. Okay, bye. Bye. तो आपने रिकॉर्डिंग सुन लिया होगा। तो आज हुआ ऐसा, ये जो नंबर है और ये जो इन्विटेशन लेटर है ये मुझे एक नेपाल के एक दीदी ने भेजा था जिसने एग्रीकल्चर वीज़ा पे अप्लाई किया था दिल्ली का एक एजेंट से। तो उनका काफ़ी सारा पैसा भी ले चुका है और वीज़ा भी 2-3 बार आके रिन्यू हो गया है, अभी तक वो नहीं आ पाया है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन नहीं हुआ बोल के नहीं आ पा रहा है, बार बार उनको झुला रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उनका पूरा कहानी। लेकिन आज मैं जो एग्रीकल्चर एजेंसी के जो सीईओ है उससे क्या बात हुआ उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कि जब उनको मैंने पूछा कि सर आपका जो नंबर है मुझे एक इनविटेशन लेटर से मिला है, और ये जो इनविटेशन लेटर है आपने एक नेपाल के जो लेडीज़ है उनको वीज़ा देने के नाम पे इनविटेशन लेटर भी भेजा और वीज़ा भी भेजा, लेकिन वो अभी तक नहीं आ पाया बोल के मैंने उनको बोला। तो उन्होंने बोला कि
हाँ, ये बात सही है। हमने इनविटेशन लेटर भी भेजा था और हमने वीज़ा भी भेजा था और लाने का कोशिश किया था फरवरी लास्ट तक, मतलब 2024 के फरवरी लास्ट तक हमने लाने का कोशिश किया था। लेकिन फरवरी जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद जो इजराइल सरकार है उसने बोला कि जो भी एग्रीकल्चर वर्कर लाएंगे आप बायलैटरल एग्रीमेंट करके ही लाएंगे बोला। और बायलैटरल एग्रीमेंट जो है कि नेपाल और इंडिया दोनों के साथ अभी एग्रीकल्चर वर्क में या एग्रीकल्चर वीज़ा पे नहीं हुआ है। नेपाल सरकार के साथ पहले बायलैटरल एग्रीमेंट था, लेकिन अक्टूबर 7 का जो हमास के हमले के बाद नेपाल के जो स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर फील्ड में मतलब इंटर्नशिप के लिए आया था या काम करने के लिए आया था, काफ़ी सारे लोगों का मौत हो गया है, जिसके वजह से नेपाल सरकार ने जो वर्क एग्रीमेंट है इजराइल के साथ वो उन्होंने कैंसिल किया। उसके बाद उन्होंने रिन्यू नहीं किया। तो इंडिया के साथ जो है कि वर्क एग्रीमेंट ओनली कंस्ट्रक्शन फील्ड पे है। कंस्ट्रक्शन वर्कर लाने का वर्क एग्रीमेंट किया है, मतलब बायलैटरल एग्रीमेंट किया है भारत सरकार से, लेकिन एग्रीकल्चर वर्कर लाने का बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं किया है भारत सरकार से। इसलिए उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर वर्कर चाहे नेपाल हो चाहे इंडिया हो कहीं से नहीं लाया जाएगा जब तक बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन इंडिया से जो है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर आएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फील्ड में या कंस्ट्रक्शन वर्क में बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है। तो ये उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर फील्ड पे ओनली थाईलैंड और श्रीलंका के साथ में बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है, इसीलिए उसी देश से अभी वर्कर आ रहा है बोला। तो मैंने पूछा कि तो भारत में जो एजेंट और कुछ एजेंसी है वो बोल रहा है कि एग्रीकल्चर वीज़ा देगा और खुला है बोल के, काफ़ी सारे जो वर्कर को एग्रीकल्चर वर्क का ऑफर लेटर भी दे रहा है और एग्रीकल्चर का जो पेपर वीज़ा है वो भी दे रहा है। तो उसका क्या सच्चाई है, मैंने उसे पूछा तो उन्होंने बोला कि वो सब झूठ है। वो सब जो सीईओ है उनका नाम लेके वो लोग ये सब काम कर रहा है, लेकिन ये सब में विश्वास मत कीजिए, ये सब फेक है बोल के उन्होंने बोला। तो भाई इतना उनसे बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि अभी जितना भी जो इंडिया से वर्कर आया या नेपाल से भी जो भी वर्कर आया वो फरवरी लास्ट तक आया है, मतलब फरवरी के बाद कोई भी वर्कर नहीं आया फरवरी तक, क्योंकि जो इजराइल में बहुत ज़्यादा वर्कर का डिमांड था अटैक होने के बाद। तो इसलिए उस समय तक जो भी वर्कर आना है ना विदाउट बायलैटरल एग्रीमेंट भी आ गया है। लेकिन फरवरी ख़त्म हो गया ना जैसे, उसके बाद कोई भी वर्कर नहीं आया बोल के बोला है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोग कोई ऐसा है जो फरवरी के बाद अगर इजराइल एग्रीकल्चर वीज़ा में अगर आया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तभी हम लोग सबको पता चलेगा। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो टूरिस्ट वीज़ा में आके यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ जो इंडिया या नेपाल से डायरेक्ट एग्रीकल्चर वीज़ा जो वर्क वीज़ा है उसमें आया है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी आप लोग फरवरी के बाद अगर एग्रीकल्चर वीज़ा में P1 वीज़ा लेके या वर्क वीज़ा लेके अगर आया है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, तभी हम लोगों को एक नया इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो इसलिए फाइनली बात ये है कि जब तक भारत सरकार के साथ में या नेपाल सरकार के साथ में बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं होगा एग्रीकल्चर वीज़ा के लिए, तब तक उन लोग नहीं लाएगा बोल के बोला है। आप लोग इंडिया और नेपाल से जो भी इजराइल का एग्रीकल्चर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है वर्क परमिट के लिए, तो आप लोग प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सोचिए। और ये जितना भी जो हो रहा है ये ज़्यादातर झूठ है। तो एग्रीकल्चर के वीज़ा के बारे में ये सच्चाई है। अभी जो भी इंडिया और नेपाल में जो भी एजेंट लोग पैसा उठा रहा है, तो आप लोग देखिए सावधान हो जाइए। और एग्रीकल्चर के वीज़ा पे कोई अगर फरवरी के बाद में ये बीच में अगर कोई आया है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मुझे लगता है वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आप लोगों को समझ में आया होगा कि एग्रीकल्चर वीज़ा का सत्य तथ्य क्या है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।